آج وفاقی وزیر برائے مذہبی امور نور الحق قادری نے پریس بریفنگ کے دوران مختلف ممالک کی مثالیں بھی دی جہاں مساجد اور مزار بند کر دیے گئے۔ الازہر کا بھی فتویٰ آیا ہے جو کہ مساجد میں بڑے بڑے اجتماعات کو روکنے کے حوالے سے، حرمین شریفین کے ائمہ کی طرف سے فتویٰ آیا ہے، امارات فتویٰ کونسل کی طرف سے فتویٰ آیا ہے، نجف اشرف اور قم کے حوزہ علمی کے اور مراکز کے فتویٰ آئے ہیں، ترکی، مصر، سعودیہ، قطر، بحرین، کویت، ایران، الجیریا، تیونیزیا، جنہوں نے اپنے مساجد کو بڑے بڑے اجتماعات کے لیے انہوں نے بند کر دیا۔ ایون کہ مکہ مکرمہ 3 دن سے مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور ریاض سٹیز کو مکمل طور پہ بند کر دیا ہے۔ اس دوران کعبہ شریف کے جو اندر والا مطاف کا حصہ ہے اس کو کلوز کر دیا گیا، مسجد اقصیٰ کو بند کر دیا گیا، نجف اشرف میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کا مزار بند ہو گیا ہے۔ ہمارا دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مسجد سے زیادہ ساجد کی اہمیت ہے اور نماز سے زیادہ نمازی کی اہمیت ہے۔ وفاقی وزیر نے یہ بھی بتایا کہ سعودی حکومت نے خط لکھ کر کہا ہے کہ حج سے متعلق ابھی معاہدہ نہ کرے۔ سعودی وزارت حج عمرہ کے ساتھ گزشتہ 3 ہفتے سے پرائم منسٹر صاحب کے حکم پہ میں رابطے میں ہوں۔ انہوں نے ہمیں کہا ہوا ہے کہ آپ حج کے حتمی جو ایگریمنٹس ہیں جس میں آپ ٹرانسپورٹ ہائر کرتے ہیں، بلڈنگز ہائر کرتے ہیں، کیٹرنگز ہائر کرتے ہیں، ایئرلائنس کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں، اس ایگریمنٹس کی طرف ابھی نہ چلے جب تک ہم آپ کو گرین سگنل نہیں دیتے۔ ہم نے اس حوالے سے حج کے ایگریمنٹس وغیرہ کو موقوف کر دیا ہے۔ خود وفاقی وزیر نے کئی ممالک کی مثالیں دی۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سعودی عرب کی حکومت حج منسوخ کرنے پر غور کر رہی ہے، عمرے پر پہلے ہی پابندی لگا دی گئی ہے۔ کئی اسلامی ممالک نے مساجد میں نماز جمعہ اور باجماعت نماز کی ادائیگی بھی روک دی ہے۔ ان میں سینکڑوں سال پرانی ایسی تاریخی مساجد شامل ہیں جہاں پہلی بار نماز کی ادائیگی نہیں ہو رہی ہے عوام کے لیے۔ یہاں تک کہ سعودی عرب نے 19 مارچ کو پابندیوں کو سخت کرتے ہوئے مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں بھی نماز جمعہ کے اجتماعات اور باجماعت نماز پر عوام کے لیے پابندی عائد کر دی ہے۔ اس سے پہلے 17 مارچ کو سعودی حکام نے حکم دیا تھا کہ مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے علاوہ ملک بھر کی کسی مسجد میں باجماعت نماز ادا نہیں کی جائے گی، لیکن اس فیصلے کے 2 دن بعد ہی سعودی عرب نے مسلمانوں کے ان دونوں مقدس مقامات کو بھی عام عوام کے لیے پابندی میں شامل کر لیا ہے اور اب صرف مخصوص افراد کو ہی یہاں پر نماز کی ادائیگی کی اجازت ہے۔ سعودی عرب نے پہلے ہی کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کی وجہ سے عمرے کی ادائیگی پر پابندی لگا دی تھی اور غیر ملکی زائرین کو واپس بھیج دیا تھا اور فضائی آپریشن معطل کر دیا تھا اور پھر ملک بھر میں کرفیو نافذ کرنا پڑا تھا۔ سعودی عرب کو یہ سب اقدامات مسلسل کورونا کیسز کی تعداد میں اضافے کی وجہ سے اٹھانا پڑے تھے۔ سعودی عرب میں اس وقت کورونا وائرس کے 1000 سے زائد کیسز ہیں اور اب تک 3 اموات ہو چکی ہیں، یعنی پاکستان سے کم اموات ہوئی ہیں۔ سختیاں پاکستان سے زیادہ کر دی گئی ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں کے دوسرے مقدس مقام مسجد اقصیٰ کو بھی بند کر دیا گیا ہے، یہاں نماز ادا نہیں کی جا رہی۔ ایران میں تہران، قم اور مشہد سمیت 23 شہروں میں 27 فروری سے نماز جمعہ کے اجتماعات پر پابندی ہے، یعنی کل 5واں جمعہ ہوگا جب ایران میں نماز جمعہ کے اجتماعات نہیں ہوں گے۔ الجزیرہ کے مطابق کورونا وائرس کی وجہ سے اردن اور مصر سمیت خلیجی ممالک میں بھی مساجد نماز کی ادائیگی کے لیے بند ہیں، جبکہ انڈونیشیا کے صدر نے بھی گزشتہ ہفتے ہی عوام کو گھروں میں ہی نماز کی ادائیگی کی ہدایت کر دی تھی، جس کے بعد دارالحکومت جکارتا کی مسجد استقلال جو جنوبی مشرقی ایشیا کی سب سے بڑی مسجد ہے، وہاں بھی باجماعت نماز کی ادائیگی کا سلسلہ بند ہے۔ مگر ملک کے کئی مقامات پر شہری پابندی کے باوجود نماز کی ادائیگی کے لیے مساجد کا رخ کر رہے ہیں۔ انٹرنیشنل میڈیا میں آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں کہ انڈونیشیا میں کورونا وائرس کا بام کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے، بری طریقے سے انڈونیشیا اس سے متاثر ہو سکتا ہے اور ایک دن میں جو رپورٹڈ کیسز کی تعداد ہے اس میں 103 ہو گئی ہے۔ اسی طرح ترکی کا معاملہ ہے جہاں کورونا کیسز کی تعداد 2400 سے زائد ہے، 59 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ وہاں بھی 15 مارچ سے نماز جمعہ سمیت مساجد کے اندر اور باہر اجتماعات پر پابندی ہے۔ الجزیرہ کے مطابق اس پابندی کی وجہ سے ترکی کے شہر استنبول کی تاریخی مسجد سلطان بھی بند ہے۔ شام جو پہلے ہی جنگ سے تباہ حال ہے، وہاں بھی 23 مارچ کو کورونا کا پہلا کیس سامنے آیا ہے، جبکہ شام کے دارالحکومت دمشق کی تاریخی مسجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی کا سلسلہ روک دیا گیا ہے۔ الجزیرہ کے مطابق 1000 سال میں یہ پہلی بار ہے جب اس مسجد میں نماز کی ادائیگی نہیں ہو رہی۔ اسی طرح تیونس اور مراکش کی مساجد میں بھی نماز ادا نہیں کی جا رہی ہے۔ یہ ہے مسلم ممالک کی صورتحال۔
गुज़िश्ता रोज़ जामिया अज़हर के उलमा का फतवा भी सामने आया था। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने यह फतवा मंगवाया था। इस फतवे के मुताबिक कोरोना वायरस तेज़ी से फैलता है। एक ज़िंदगी को बचाना और तमाम खतरात और नुकसानात से महफूज रखना इस्लामी कानून का अजीम मकसद है। लिहाजा हर मुसलमान मुल्क में रियासती ओहदेदारों यानी हुकूमत को बाजमात नमाज और नमाज जुम्मा पर पाबंदी लगाने की इजाज़त है। उलमा ने कहा है कि इंसानी ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाजमात और नमाज जुम्मा पर पाबंदी पर अमल किया जाए। इसके अलावा मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील ने भी कहा है कि दीनी, मजहबी और सियासी तमाश से बचें। मस्जिद में बाजमात नमाज से तकलीफ फैलती है तो नमाज घर पर पढ़ें। तो तवक्कुल का मतलब गलत ना समझा जाए। तवक्कुल का मतलब मेरे नबी ने समझाया, कुल सुम्मा तवक्कल, कि पहले अपने ऊँट की टांग को बांधो फिर अल्लाह पे तवक्कुल करो। तो अगर मुसाफा करने से ये बढ़ रही है, मुसाफे से बचें। इज्तिमाआत से बढ़ रही है, इज्तिमाआत से बचें, वो दीनी हों, वो सियासी हों, वो दुनियावी हों, उन सब से बचें। और ऐसे ही मस्जिद में बाजमात नमाज से अगर ये तकलीफ फैलती है तो अपने घरों में नमाज पढ़ें। मेरे नबी ने बारिश के वक्त कह दिया था बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु से, सल्लू फी रिहालिकुम, कि ऐलान करो कि अपने अपने घरों में नमाज पढ़ें। साथ ही मारूफ आलिम दीन जावेद अहमद गामदी की राय है कि ऑनलाइन नमाज घर से अदा की जा सकती है। इंसानी जान को जब खतरा लायक हो जाए तो अल्लाह ताला ने इसका पाबंद नहीं किया कि आप हर हाल में उस चीज को मिसाली सूरत में रखें, आप मुतबादल सूरत में चले जाएं। चुनांचे मैंने तो ये मशवरा दिया है अपनी बहुत सी गुफ्तगुओं में कि आप पैवाने सदर से जमात का एहतमाम कर दें और लोग ऑनलाइन घरों में पढ़ लें। मौजूदा जमाने में अल्लाह ने ये सहूलत पैदा कर दी है, इससे फायदा उठा लें। उससे नमाज का एक मकाम भी कायम रहेगा और लोग भी खतरे। अब हमें ये बात समझना होगी कि उलमाए दीन का फतवा है, हुकूमत का फैसला है, तो इस पर अमल दरामद करें, अपनी मनमानी ना करें। कोरोना वायरस के फैलाव में तेज़ी रश या इज्तिमात की वजह से आई। एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शाया होने वाली खबर के मुताबिक जहलम के एक गांव को सील कर दिया गया है और खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि ये इलाका कोरोना वायरस का नया क्लस्टर बन सकता है, क्योंकि रावलपिंडी में कोरोना वायरस से मरने वाली खातून की नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की, जिसकी वजह से मजीद अफराद के मुतासिर होने का खदशा है। अहम बात यह है कि कोरोना वायरस का शिकार होने वाली खातून 9 मार्च को बरतानिया से वतन वापस आईं। जहलम के गांव में उन्होंने अपने एक रिश्तेदार की आखिरी रसूमात में शिरकत की। उसके बाद उन्होंने बीमारी की शिकायत की। उन्हें रावलपिंडी के अस्पताल ले जाया गया, जहां पता चला कि उन्हें कोरोना वायरस है और इस दौरान वो दम तोड़ गई। इसके बाद उनकी नमाज जनाजा में उनके ख़ानदान और मकामी अफराद ने शिरकत की। किसी ने भी एहतियात नहीं की। बाद में आने वाली टेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक खातून के साथ लंदन से आने वाले उनके शौहर और भतीजे को कोरोना वायरस हो गया है। अब मकामी इंतजामिया इन तमाम अफराद का सुराग लगा रही है जिसने नमाज जनाजा में शिरकत की, और गांव को सील कर दिया गया है। इसके अलावा आसपास के गाँव में भी स्क्रीनिंग की जा रही है। डॉक्टर यास्मीन राशिद भी इस हवाले से बता रही थी। इसी तरह इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर ने ट्वीट किया कि शहजाद टाउन में होने वाली नमाज जनाजा में जो भी शरीक हुआ है उसे इतला दी जाती है कि वो अपने आप को अलहदा कमरे में रखें और अपना टेस्ट करवाएं। अभी तक एक केस है, इस इलाके को सील किया जा रहा है। इस्लामाबाद में बाराकहू के इलाके में भी पहले एक तबलीगी जमात की वजह से अब तक 16 केसेस सामने आ चुके हैं। कल भी हमने आपको मिसाल दी थी कि मर्दान के एक गांव में कैसे एक ही दिन में 39 केसेस सामने आए। उम्र की अदायगी के बाद एक शख्स गांव में आया, वतन वापसी से पहले ही उनकी तबीयत खराब हो गई, मगर एहतियात नहीं की, उनका इस्तकबाल किया गया। 2000 लोग उनकी दावत में शरीक हुए, जिसकी वजह से पूरा गाँव सील किया जा चुका है। लोगों के टेस्ट किए जा रहे हैं। फरवरी में होने वाले रायबेंड इज्तिमा की वजह से बड़ी तादाद में कोरोना वायरस के केसेस सामने आ रहे हैं। फलस्तीन में कोरोना वायरस के 2 केसेस सामने आए। इन दोनों अफराद ने रायबेंड के इज्तिमा में शिरकत की थी। इसी तरह मलेशिया की एक मस्जिद में 16,000 अफराद का इज्तिमा कोरोना वायरस के फैलाव की वजह बना। मलेशियन हुक्काम के मुताबिक 60% केसेस का ताल्लुक उसी इज्तिमा से है। ईरान में भी यही हुआ। कोरोना के 2 केसेस सामने आने के बाद कुम शहर को लॉकडाउन किए जाने की बजाय ज्यादा से ज्यादा अफराद को जियारत के लिए आने की तरगीब दी गई, यानी केसेस आ चुके थे कुम शहर में, उसके बावजूद ज्यादा अफराद को जियारत के लिए आने की तरगीब दी गई। इस वक्त सूरत हाल यह है कि ईरान दुनिया में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाला चौथा बड़ा मुल्क है। अब तक ईरान में 2077 अमवात हो चुकी हैं। 27,000 से ज्यादा अफराद इससे मुतासिर हैं। इस हवाले से BBC ने रिपोर्ट किया है, जिसके मुताबिक 19 फरवरी को ईरान के शहर कुम में 2 अफराद कोरोना वायरस का निशाना बने। उनमें से एक बिजनेसमैन था जिन्हें चीन से ये मर्ज लाहक हुआ था, जिसके बाद कुम फौरन ही इस वबा का मरकज बन गया। जल्द ही वायरस तेजी से फैलने लगा और केसेस की तादाद बढ़ने लगी, मगर शहर को फौरन ही क्वारंटीन में डालने के बजाय ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के नुमाइंदों ने ज़ायरीन का आना
जारी रखने के लिए मुहिम चलाई, बल्कि ये तक कहा गया कि हम कुंभ के मुक़द्दस मज़ार को शिफा का मरकज़ समझते हैं, इसलिए लोगों को रूहानी और जिस्मानी बीमारियों से शफायाबी के लिए यहाँ आना चाहिए। BBC के मुताबिक 19 फरवरी को ईरान की हुकूमत ने शहरियों से वायरस से मुताल्लिक फिक्रमंद ना होने का कहा था और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने ईरान के दुश्मनों पर इल्ज़ाम आयद किया था कि वो खतरे को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। लेकिन एक हफ्ते बाद ही जब केसेस और अमवात की तादाद में इजाफा हुआ तो ईरान के सदर हसन रूहानी ने भी उसे संजीदा नहीं लिया। उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया कि यह सब मुल्क को रोक देने के लिए किया जा रहा है, इसलिए शहरी अपना रोज़मर्रा का काम जारी रखें। इसके अलावा रियासत के ज़ेरे कंट्रोल TV प्रोग्राम्स में ऐलान किया गया कि कोरोना वायरस मुमकिन तौर पर अमरीका में तैयार किया गया एक कीमियाई हथियार हो सकता है। इस बारे में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने ट्वीट भी किया। BBC के मुताबिक ईरान ने कोरोना वायरस से मुतालिक अवाम को अंधेरे में रखा, उसे दुश्मनों की साजिश करार देते रहे और इस दौरान कोरोना वायरस से अमवात बढ़ती चली गई और अब सूरत हाल यह है कि वायरस से हलाक होने वालों की कब्र पर जाने को भी खतरनाक करार दिया जा रहा है। ईरान में बर वक्त फैसला कर लिया जाता तो वबा पर काबू पाया जा सकता था। फिर जब सूरत हाल खराब हुई तो ईरान से बड़ी तादाद में ज़ायरीन ताफ्तान की सरहद पर जमा हो गए और फिर वहाँ से ये वायरस पूरे मुल्क में फैल गया। स्पेन भी इस वक्त कोरोना से होने वाली हलाकतों में चीन को पीछे छोड़ चुका है। स्पेन में भी इज्तिमा ही कोरोना वायरस की फैलाव की वजह बना। बरतानवी अखबार गार्जियन में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक स्पेन में 18 दिन पहले तक ऐसे हालात नहीं थे। 7 मार्च तक मामला कंट्रोल में थे और स्पेन में 3 हफ्ते पहले तक कोरोना वायरस के केसेस की तादाद सिर्फ 430 थी और उनमें से 60 केसेस वो थे जिन्होंने आखिरी रसूमात में शिरकत की थी। मगर स्पेन के हुक्काम ने उनका पता चला लिया था और मुतासरा कस्बे को क्वारंटीन भी कर दिया था। मगर हालात उस वक्त बिगड़ना शुरू हो गए जब 7 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे से एक दिन पहले हज़ारों अफराद ने स्पेन भर में रैलियां निकाली और सियासी जमात के 9000 अफराद मैड्रिड पहुंचे, जिन्होंने 8 मार्च को वुमेन डे की तकरीबात में शिरकत की, जिसमें काबीना के 3 अरकान और स्पेन की वज़ीर आज़म की अहलिया भी शामिल थी, जो बाद में कोरोना वायरस का शिकार हो गए। और फिर इस इवेंट के 3 दिन बाद 11 मार्च से सूरत हाल बिगड़ना शुरू हो गई। सिर्फ मैड्रिड में कोरोना वायरस के 1646 नए केसेस सामने आ गए, जिसके बाद मैड्रिड में तमाम तालीमी इदारे और अवामी मकामात को बंद कर दिया गया। मगर हालात बिगड़ते गए और 12 मार्च को स्पेन के शहर बार्सिलोना में 2 हफ्ते के लॉकडाउन का ऐलान किया गया। फिर 14 मार्च को मुल्क भर में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया, मगर बहुत देर हो चुकी थी, हालात काबू से बाहर हो चुके थे। स्पेन जहां आज से 3 हफ्ते पहले तक कोरोना के सिर्फ 430 केसेस थे, सिर्फ एक कस्बे को क्वारंटीन किया गया था, वहाँ अब अफवात के एतबार से दुनिया का वो दूसरा बड़ा मुल्क बन गया है, जबकि 4089 अफराद हलाक हो चुके हैं। 56,188 से ज़ायद केसेस की तस्दीक हो चुकी है। इसलिए लॉकडाउन और टेस्ट ज़रूरी है, अवामी इज्तिमा में ना जाना ज़रूरी है, उलमा का फतवा और हुकूमत के अहकामात मानना ज़रूरी है। कल जुमा है, इस सब की पासदारी आपने करनी है। हम प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद पाकिस्तान में कोरोना से का शिकार होने वाले पहले शख्स हमारे साथ मौजूद होंगे, याया जाफरी, और उनसे पूछेंगे उन पर क्या बीती, क्वारंटीन में रहे, सेहतियाब हो गए हैं, उनके घर वालों पे क्या बीती और क्या क्या उनको अलामात थी, कोरोना में उन पर क्या हुआ। पहली दफ़ा हमारे साथ मौजूद होंगे याया जाफरी।